तू स्टार्ट कर, मैं करूँ? मैं करता हूँ। अरे धन धना धन होगा रे, दिल्ली उड़ा रे, धन धना धन होगा रे, होगा रे, धन धना धन होगा रे, इस पार या उस पार रे, धन धना धन होगा रे। I will give you a moment to, Guy Shan has lost it. It's okay, it happens. It happens. So, the reason why we're making this special episode after PSL because आजकल जो खबरों में इन है, हमने कहा हम उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें. दो लोग जिनके बारे में हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, and we said that they are about to make a decision. They have made that decision. Mohammad Amir and Imad Wasim, as you guys all know, have taken their retirement back. And most likely, 99% chance है कि they are going to be included in the World Cup squad. 100% they'll be in the 100% कर लो. That's the reason. 1% मैंने ऐसे ही रख दिया. फिलहाल just in case कि वो काकोल के इस ट्रिप के बाद कितना सरवाइव करती है टीम, वो 1% उसके लिए. Just in case बाबर आजम कैप्टन ना बन जाए. Yes. So coming back to Mohammad Amir and Imad Wasim, they came back because of Shaheen individually talking to each one of them. And now, as we all know, कि कैप्टनसी के बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसको कैप्टन बनाएंगे. अगर बाबर आजम कैप्टन बन गया, what do you guys think? Will he include these two in the playing 11? I don't think बाबर का कोई भी चांस है कैप्टनसी का. I think. What do you have to say about Mohammad Amir and Imad Wasim taking their retirement back? Mohammad Wasim ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि this gives a bad impression about your cricket board के your retired players can take retirement back anytime. They can come back and then they decide to retire back again. और कोई भी अच्छा प्लेयर अब तो ये नहीं वो कहेगा मैं रिटायर हो जाता हूँ, लीग्स खेलता हूँ. Exactly. और वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले I'll just take my retirement back और फिर मैं जो है वर्ल्ड कप खेलता रहूँगा. There is nothing wrong with that. What's funny is कि मोहम्मद वसीम जो बात कर रहे थे, उनकी वजह से इमाद वसीम को इग्नोर किया गया and he was removed from the team. Like उसकी इतनी बुरी performances नहीं थी. Like आप if you wanted you could take नवाज and इमाद वसीम दोनों को साथ लेके चल सकते थे, but आपने नवाज के ऊपर emphasize करा. नवाज was a good player. आमिर का थोड़ा डिफरेंट सीन था. आई थिंक उसकी बन नहीं रही थी, किसी कोच से नहीं बन रही थी, कैप्टन से नहीं बन रही थी, किसी से नहीं बन रही. लाइक आमिर की तो इवन पीएसएल में परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी भी नहीं थी. इमाद एटलीस्ट उसने मैचेस जिताए इंडिविजुअली. यू कैन मेक एन आर्गुमेंट कि उसको आना चाहिए था टीम में या उसको. I mean आमिर की like if you look at the stats then yes you can say कि यार like 10 विकेट लिए हैं, like 7 की इकोनॉमी रेट थी, but he was coming in crunch moments and winning those crunch moments in the matches. So I think वो उसका जो experience है that will come in handy, and I think like the biggest debate is going to be like now you have Naseem Shah, Shaheen Shah, Imad Wasim and Amir, new ball bowlers with Saim Ayub possibly also. Saim Ayub को consider भी नहीं करेंगे I think ये लोग. Yeah, but like उसने he's proven in the PSL. I know, right? I personally like him. तो अब ये देखना है कि how is that going to shuffle because I think ये चारों प्लेयर खेलेंगे. for sure. I feel like ये खेलेंगे और मुझे लगता है कि अभी भी शाहीन और नसीम ही नई बॉल करेंगे क्योंकि आमिर कैन स्टिल बॉल गुड विद द ओल्ड बॉल. शाहीन कैन नॉट really ball as good with the old ball. तो मुझे लग रहा है यही दो स्टार्ट करेंगे. आमिर को मे बी फर्स्ट चेंज रखें. इमाद का देखना होगा कैसे ओल्ड बॉल से करता है. I think Imad is gonna be starting with the new ball or maybe continuing in the power play. जब pitches थोड़ी सी ज़्यादा slow होंगी तो इमाद को यूज़ करना चाहिए because वो it's a no brainer कि वो वहाँ पे इमाद से बेहतर कोई भी नहीं होगा. आमिर का I think I agree because Amir can still be lethal with the first change में अगर वो आए because वो फिर भी स्विंग कर लेगा क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस भी है. स्लो बॉल आजकल वो अच्छी करा रहा है. Naseem is your best new ball bowler right now. You cannot ignore overall, him. I think your Naseem best के bowler. 2 ओवर पहले पावर प्ले में पक्के हैं. शाहीन के भी शाहीन के भी I think is good to उसके 2 ओवर निकाल लो and then I think बीच में इमाद के आप ये 2 ओवर निकाल ले पावर प्ले में that's your 6 over. I hope Shaheen does not act like हार्दिक पांड्या के पहला ओवर भी मैं कराऊंगा चाहे मैं कितना पिटूं, सारे ओवर मैं कराऊंगा. हार्दिक जितना क्रिटिसाइज हो रहा है इस वक्त. But मजे की बात है मजे की बात है कि जब आईपीएल चल रहा है. हाँ. हम आईपीएल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 2 प्लेयर्स की जो रिटायर हो गए थे but वो वापस आ रहे टीम में.
ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही हो सकता है। एक प्लेयर जिसने पाकिस्तान छोड़ के एमिरेट्स चला गया था वो टीम में वापस आ रहा है। हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि आईपीएल में क्या हो रहा है, जब दुनिया के अंदर दूसरी सीरीज हो रही है 270 प्लस स्कोर हो गया, 250 ऑलमोस्ट दूसरी इनिंग में हो गया। जितना मसाला भी आईपीएल में चल रहा है, we're not talking about that. We will come to that as We're well. talking about But कि उसका PNE सारा मसाला एक ही टीम में चल रहा है। हाँ, so आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट never fails to disappoint, सही you know, बात, like सही बात। हर वक्त पीएसएल खत्म हो लेकिन ये लो नया शोशा ये लो। अभी तो और शोशे आ रहे हैं, आपने वो देखा, you saw चीफ सिलेक्शन कमेटी जो बनी है Yeah. कि there's not going to be a chief selector, there's going to be a selection panel, उसमें आपके पास वहाब रियाज है, this is the same people, असद शफीक, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक शायद अब्दुल अब्दुल रज़ाक रज़ाक को लेकर आए, मोहम्मद यूसुफ है, हेड कोच, कैप्टन एंड डेटा एनालिस्ट। हाँ। सही है, डेटा एनालिस्ट एक तो सही है और दूसरा डेटा एनालिस्ट कहाँ से आया वो, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या, बिलाल समथिंग, yeah. लाइक सिफारिशी। उसने टेप बॉल के लिए भी डेटा एनालिसिस नहीं करा। मुझे पता ही नहीं है क्या होता है डेटा, क्या होता क्या है डेटा। उसने मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में ही कहा, होता या है। मोहसिन नकवी ने कहा मैं तो हैंड्स ऑफ हूँ, मैं अपना बंदा डाल देता हूँ कि मैंने इंटीरियर संभालना है। हाँ मैंने मुल्क संभालना है, इसको मैं लगा देता हूँ साइड में। अभी इंटरेस्टिंग चीज, जैसे शायन ने कहा कि एक बंदा एमिरेट्स चला गया था, अब मुझे जो बुरा लग रहा है उस्मान खान के लिए कि अगर तो उस्मान खान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, पाकिस्तान में उस्मान खान का फ्यूचर नहीं है। with the just how the team is right now, जिस तरह टीम की केमिस्ट्री पे और जिस तरह टीम की एक सेटिंग बनी हुई है, बैटिंग ऑर्डर इस तरह बना हुआ है, उस्मान खान डज नॉट फिट राइट नाउ। स्पेशली टॉप ऑर्डर प्लेयर की जगह बन ही नहीं सकती इस वक्त Yeah. में। I think there is room. It depends on a lot of things. It depends on अभी जो 12-13 मैचेस आ रहे हैं उसमें साइम अयूब, how does he perform at the top of the order, and then Rizwan, how does he perform at one down? Because I think if Rizwan doesn't perform at one down and Saim Ayoub's performing opening Babar Azam के साथ, then you have an option के you can play Usman as a wicket keeper. But I don't see Rizwan. नहीं, performance पे बात कर रहा हूँ ना But मैं। performance Rizwan के overall has been. Yeah, but you have to look at like, उसका running form, like PSL में भी like उसका run score कर रहा था, but like उसकी जो ना 120 की strike rate थी। I know, but from his perspective कि that what his role was, उसने फाइनल तक पहुंचाया अपनी टीम को और उसका जो रोल डिफाइन हुआ था वो परफेक्टली उसके हिसाब से खेल रहा था और फाइनल तक उसने लेके गया। बट आई थिंक असल जो व्हाट यू सेड कि साइम अयूब की फॉर्म डिटरमिन शायद करेगी उस्मान की जगह बनती है। अगर साइम अयूब बिल्कुल ही फॉर्म उसकी खराब हो गई तो फिर एक ऑब्वियस सी चॉइस होगी कि उसको ड्रॉप करो और उस्मान खान को ले Because आओ टीम में। I think because Shadab Khan is a shoe in at number 4. और उससे फायदा शायद ये हो कि फिर दोबारा बाबर रिजवान ओपन करें और वन डाउन आप उस्मान को खिलाओ जैसे Exactly. पीएसएल में Yeah, खेल रहा exactly. बट आई जस्ट रियली होप कि साइम अच्छा ही खेल ले। I'm really rooting for Saim Ayoub because एक बहुत अरसे बाद आपको एक ऐसा फील्डलेस बैट्समैन मिला है जो वो गेम नहीं खेलता जो हमारी नेशनल पाकिस्तानी टीम का स्टाइल है, एंड इसी तरह के मैच विनर्स होते हैं जो आपको हमेशा मैच जिताते हैं। एंड ये एक ऐसा टैलेंट है कि अगर ये चल गया, ये बंदा आपको हर फॉर्मेट में चल के देगा। One-sided player. हाँ, हर फॉर्मेट में ये आपका चल के देगा, तो आई एम रियली रूटिंग फॉर हिम। प्लस ही हैज अ सीपीएल एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर एंड साइम अयूब, इन तीनों के पास। आजम खान को तो मैं खैर मेरी पर्सनल टीम में तो मैं इंक्लूड नहीं करता, स्पेशली ना अगर उस्मान खान का भी ऑप्शन है। अपेरेंटली अभी 2 किलोमीटर रन किया उन्होंने वहां पे, तो आजम खान ने 20 मिनट्स में माशाल्लाह से वो कंप्लीट किया। बीच में रुक गया, मैं मुझसे नहीं और हो पाएगा, लेकिन 20 मिनट्स में उसने आई थिंक स्लो क्लैप ही वाली छोटी क्लैप नहीं। लेकिन अब देखो, अब हम पहले ये सोच रहे थे कि जब आमिर और इमाद की इंक्लूजन कंफर्म नहीं था कि हम आगा सलमान को डाल रहे थे, हम आमिर जमाल को डाल रहे थे। अब वो 2 स्पॉट तो आपके आमिर और इमाद ने ले लिए, राइट? सो अब ही इज राइट, शादाब विल बी योर नंबर 4। उसके बाद मोस्ट लाइकली ये इफ्तिखार इमाद एंड देन योर बॉलर्स। सो यू डोंट हैव एनी प्लेस फॉर इवन आगा सलमान राइट नाउ, और सलमान अली आगा as he likes to be called nowadays। उसने नाम चेंज करके किस्मत बदल दी वैसे। झूठ बोलता, कहता कि मैं शुरू से सलमान अली आगा था, नहीं आगा सलमान था। आप PSL निकाल के देखें, PSL 7-6 जब लाहौर में था। आगा सलमान आपको था। सच पता चल जाएगा। हाँ। हम एक्सपोज करेंगे यार। लेकिन बट यार इतने ज्यादा स्पिनिंग ऑलराउंडर की जगह इकट्ठे तो नहीं बन सकती। अगर इमाद खेल रहा है तो आगा सलमान की जगह ही वो खेल रहा है। एग्जैक्टली, Especially if you plan on including Abrar in your starting 11. Because I think Abrar is going to be pretty useful in Caribbean. एंड आई थिंक ही शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज आपके पास अब शादाब को आप एज अ बैट्समैन ट्रीट करें, डू नॉट ट्रीट हिम एज अ बॉलर राइट Leg spin नाउ। is off, like bonus. बैटिंग ऑलराउंडर है। हाँ, इमाद एंड अब्रार विल बी योर की स्पिनर्स,
with Iftikhar as a part-time spinner, Sam Ayub is also a part-time spinner. तो आपके पास 4 तो ये हो गए. आपके पास 3 पेसर्स हैं जो most likely are gonna be Shaheen, Naseem and Amir. And I think it's a good combination. आमिर की जगह हम हारिस रऊफ या जमान खान को सोच रहे थे पहले. I would prefer Amir just because of the experience that he has and based on how Haris Rauf's form is right now. अब वो इंजरी के बाद कैसा होगा we don't know. Zaman does not have a lot of experience, so मुझे तो वसीम जूनियर बहुत पसंद है वैसे. आई फील सबको लाइक पसंद है वसीम उसके साथ ज्यादती होती है कि उस बेचारे की लक इस तरह की है जब वो टीम में आए हमेशा कोई ऐसी टीम ऑलरेडी मौजूद हुई है कि उसकी जगह नहीं बन पाई. हारिस रऊफ पहले परफॉर्म कर रहा था. यार सच की बात है, लोग उसके बालों से चलते हैं. हाँ, That is the truth. सही बात. Wasim, सही बात. we love your hair. We love your hair. We're not scared of your hair. Yeah. आमिर की बैटिंग भी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है. I think आमिर जी एक मैच जिताया था इसने कोयटा. कोयटा को, और एक आखिर मैच में जो कोयटा हार गया था, I think 20-25 रन बनाए थे 10 बॉलर में Yeah. मार मार के. बट इसका देखते हैं आपके कैप्टन कौन बनता है, उसके साथ इसका एटीट्यूड कैसा होता है. असल में घूम Let's करके see. मसला ही आता है ना कि इमाद और आमिर का मसला ही शुरू से ही था कि इनके फड्डे थे टीम में इतने किसी न किसी से कि इनकी बनती नहीं थी. अब वो हर चीज़ डिपेंड करेगी कि आपका जो कैप्टन है उनके साथ इसकी कैसी बनती है. और पहले जब इमाद, असल में जो शाहीन ने इनसे बात की थी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. असल में इनको गारंटी दी है कि आप वर्ल्ड कप खेलोगे. Yeah. फिर ये लोग आए हैं वापस. Yep. पहले इन्हें कहा था कि आप भाई डोमेस्टिक थोड़ा खेलो, पीएसएल खेलो, परफॉर्म करो और रिटायरमेंट वापस लो. विल सी के क्या होगा फिर. Yeah, that was the stance जो आपके पुराने चीफ सेलेक्टर्स थे, आपकी पुरानी मैनेजमेंट थी, but the current management, they're like, you know what, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, कोई Sure. फर्क नहीं पड़ता. Say it there as a Nine board, ऐसे you कई understand. बार में. Yeah, as a board, you understand that you want your team to do the best, but it also shows that कोई the principles नहीं the है. board itself does not have confidence in your domestic structure. Exactly. Right? कि आपने ये 4 साल के बाद घूम फिर के आप उन्हीं प्लेयर्स पे आ गए. और- लेकिन मेरा अब एक सवाल है कि let's say Pakistan does not do well in this World Cup, are they going to retire right after the World Cup again? तो 100% I think this is their Yeah. last World Cup. They are not playing anymore. इमाद वसीम तो 35-36 का हो गया. फिटनेस इश्यूज तो वही है ना कि we're just sending out a very bad image जो I think like you said they don't care about it. हाँ. लेकिन ये चलो आपने इस वर्ल्ड कप में ही कर लिया लेकिन आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड दे हैव टू लुक एट दिस के ये बार-बार ये जो हम लोग स्विच करके खेल करते रहते हैं ना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि इस दुनिया में हमारा ही नाम बदनाम हो गया. देखो पाकिस्तान की it's their tradition that before every World Cup हेलीकॉप्टर होके 2-3 प्लेयर आते हैं. So इस दफा हेलीकॉप्टर होके so far it has been इमाद वसीम and मोहम्मद आमिर. शुक्र करो शोएब मलिक का हेलीकॉप्टर नहीं हुआ. शोएब मलिक इज कोशिश बड़ी की है उसने, लेकिन कोशिश उसका करी. हेलीकॉप्टर जो है कहीं और चला गया. हाँ. जीतो पाकिस्तान चला. हाँ वो अच्छा है ब्रो लाइक अच्छा एंटरटेनिंग है. कीप इट अप ब्रो, कीप इट अप. जीतो पाकिस्तान हमें बहुत पसंद है. वहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत दिल जीते. सैफी ने भी बहुत दिल जीता है. सैफी का क्वेटा में नहीं बना कुछ वहाँ पे लेकिन जीतो पाकिस्तान में सैफी का चल रहा है. बड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो वहाँ पे भी. हाँ, कल मैंने देखा जीतो जितना गुस्सा सैफी लोगों में कर रहा था. सैफी goes into his wicket keeping mode. मैं तो डर लगा रहा था कि जना कहीं गाड़ी वाली निकाल दे. इसलिए प्रैक्टिस करते हो तुम इतनी. सुहेल खान सुहेल खान इधर आ तुम. फुल टॉस करानी है तुमने. नहीं लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज में ये कॉम्बिनेशंस अभी टेस्ट कर सकते हैं अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशंस अपने बैटिंग कॉम्बिनेशंस. कब से स्टार्ट हो रही है न्यूजीलैंड? Next week. 18th से हो रही है ब्रो. नहीं 8th या 9th को स्टार्ट हो रही है. आई थिंक 8th को दे आर मेकिंग अ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द कैप्टनसी. उसके बाद तो कौन कैप्टन लग रहा है, शादाब या रिजवान? आई थिंक दे आर स्टिकिंग विद शाहीन. because मुझे आई जस्ट फील लाइक अगर शाहीन को रखना था ना तो देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ सेइंग कि हम लोग No. अभी कैप्टन का डिसाइड, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, लाइक इट्स जस्ट So- सो स्टूपिड टू से समथिंग लाइक दिस. they wanted to change it. They wanted to change it because Shaheen की captaincy न्यूजीलैंड की सीरीज में was not good and then he did not पीएसएल impress असल में in इतना the बुरा PSL. डिजास्टर हुआ उसका बहुत बुरा कि गया. उसकी वजह से बहुत So question marks आ गए. I think they wanted like शादाब खान को as captain but शादाब खान ने I think मना कर दिया. दिया. I think रिजवान का रिजवान को ये I है don't think they रिजवान would. को तो मोहसिन नकवी बना ही ना दे कभी कैप्टन. रिजवान मोहसिन नकवी की बात नहीं I think नहीं, overall मोहसिन नकवी जो Gen- जो जिस तरह का उसका कैरेक्टर है ना, दे डोंट वांट रिजवान टाइप कैप्टन जो अपनी मनमानियां करे और अपनी चीजें, वो जो है चाहिए अब ऐसा कैप्टन हो जो इनके हिसाब से चले.
इनके हिसाब से काम करें। बट बाबर आजम भी इनके हिसाब से नहीं चलने वाला नहीं, और नो बाबर ना शाहीन अफरीदी इनके हिसाब से चलेगा। शाहीन भाई चल शाहीन जाएगा। चलेगा, शाहीन ना, चल शाहीन जाएगा। तो शाहिद अफरीदी के हिसाब से। शाहीन is a very- शाहीन आकिब जावेद की बातें नहीं सुन रहा था मुझे। नहीं, लेकिन रिजवान भी आई थिंक नहीं लेगा आई कैप्टनसी। थिंक शादाब और शाहीन का है, और मुझे भी लग रहा है शायद शाहीन को रखे, बट आई जस्ट फील लाइक कोई पॉइंट नहीं था ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कैप्टनसी की बात छेड़ी। और बाबर को तो अगर बाबर को ये प्लेट पे भी रख के देते ना तो आई थिंक बाबर शुड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज बाबर के साथ जितनी ज्यादती इन्होंने नहीं, की, बाबर को देंगे भी नहीं। तो And बाबर तो would it नहीं mean कि Babar is just T20 captain or is he going to be one day captain and test captain? Because originally जो उसने captaincy छोड़ी थी उन्होंने कहा था कि like आप one day छोड़ दें and you can still be T20 and test captain, but आप शान मसूद को निकालेंगे। वो भी नहीं निकल रहा अभी तो। शान मसूद तो नहीं निकल रहा। शान मसूद तो खैर अभी शान मसूद भी नहीं निकल रहा। वन डे आपके अब नेक्स्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से होंगे नवंबर में, सो यू डोंट नीड टू वरी वनडे तो अबाउट होते ही इतने कम है कि उसका तो बट आई थिंक बाबर ने जो स्टैंड लिया था वो लिया था ही वांटेड कैप्टनसी फॉर ऑल फॉर्मेट्स। अब वो उस पे बैक I think करेगा उस- तो उसकी पोजीशन और जो ना उसके और बाद भी जो बोर्ड ने जिस तरह से ट्रीट किया था, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन लीक हो रही थी और जो हरकतें हो रही थी बोर्ड की तरफ से, बाबर तो आई डोंट थिंक बाबर को ना पहली बात ना ही अप्रोच करें ना बाबर वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो बिकॉज बाबर को अपने सब हो भाई चुका है वो। हाँ नहीं बाबर अब को decision is pending. अपने करियर पे फोकस करने दें भाई। ही इज योर बेस्ट बैट्समैन, ही इज गोना बी द बिगेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर सीन, सो लेट हिम डू दैट। फजूल के ये ड्रामा में बाबर ना ही पड़े तो बेहतर है। बट आई थिंक राइट नाउ बिकॉज अगर शादाब ने मना कर दिया एंड रिजवान का भी ऑप्शन नहीं होगा तो दे हैव टू स्टिक विथ शाहीन फॉर एटलीस्ट द वर्ल्ड कप। उसके बाद दे माइट जस्ट टेक whatever decision that they want to take, but at least यहाँ तक तो शाहीन ही stick. I think जो decision उनको लेनी है वो वर्ल्ड कप के लिए ही लेनी है because they want like somebody who can actually deliver. But it's unfair to Shaheen कि आप उसको 5 मैचेस के बाद छोड़ दें जब आपने बाबर आजम को you can stuck with him for like 4 years, right? I just think And then he was ये discussion होनी ही नहीं चाहिए थी वर्ल्ड कप तक। Yeah, I think it's more politics के यार आपने हाँ, जो politics जबरदस्ती हो जो गया। बाबर आजम को हटाया शाहीन को रखा and now this new board wants to just change things up and overturn everything. तो जो बाबर आजम ड्रॉप हुआ वो गलत हुआ, but I think if he comes back that will also be wrong. Yeah, Oh yeah, 100%. PCB का दूसरा नाम सर्कस है। हाँ, यहाँ पे हर तरह के ड्रामे होते हैं, तो आप कुछ देखते भी हैं। कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप फोकस करें, देखें आप छोड़ दें, अच्छा, आप फोकस करें IPL अवेंजर्स जो असेंबल हो रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उसके ऊपर फोकस करें आप। वैसे अवेंजर्स हो रहे हैं असेंबल। अवेंजर्स भाई मैंने तो कल स्कैवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं, अवेंजर्स उमर नहीं हो रहे। अकमल की वीडियो देखी, हाँ फिटनेस हुई भी है इस बंदे की। ओ भाई बहुत फिटनेस है। वो तो कह रहे हैं मैं रेडी हूँ टीम के लिए। ब्रो अहमद शहजाद ने भी फुल कैंपेन करी अभी थी, तो चैरिटी वगैरह करा था। रमजान टूर्नामेंट में इमरान नजीर खेल रहा है। इमरान नजीर हर बंदे को उन्होंने खिलाया हुआ है। ब्रो अब्दुल रज़ाक खेल रहा था। कौन नहीं उनका खेल बेटा रहा? भी खेल रहा है। ये रमजान टूर्नामेंट लगता है कोई अजीब फन टूर्नामेंट होता है इनका। मजे की बात है पीएसएस अच्छा जा रहा है वो tournament। तो शायद आपका अभी जब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हार्दिक पांड्या के ऊपर, तो विल जस्ट एंड द एपिसोड विद हार्दिक पांड्या's डिबेट। डू यू थिंक हार्दिक पांड्या शुड हैव बीन द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस? बिकॉज जितनी हेट उस बंदे को हर जगह से मिल रही है, मुंबई के अपने फैन से मिल रही है, क्या लगता है? आई थिंक हार्दिक पांड्या और शाहीन अफरीदी की दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। हार्दिक पांड्या का सबसे फनीस्ट था अभी जो 3 बॉलों में 3 चौके पड़े उसे, हाँ। और फिर वो कोई कैलकुलेशन करना शुरू हो गया अपने हाथ से। हाँ, वो कह रहा, कह रहा, ये वो वहाँ And कोई वजीफा तो नहीं commentator पढ़ा बोले कि क्या कर रहे हो भाई, 3 ओवर हो चौके गया। गए तुम्हें। अच्छा ओवर हो गया था। तुम No. कौन सी कैलकुलेशन आप कर रहे हो? बट यार आपके पास लाइक वन ऑफ इंडियाज टॉप कैप्टन रोहित शर्मा आपकी टीम ना उसको बाउंड्री पे खड़ा और कर ये रहा हम है। लोग पहले पीएसएल जब 2-3 साल पहले करते थे कि बाबर आजम कराची में कैप्टन क्यों नहीं है आपका, पाकिस्तान का वो कैप्टन है, कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का कैप्टन पीएसएल में कैप्टनसी नहीं कर रहा? उसके बाद मजे की बात है द फर्स्ट मैच अगेंस्ट गुजरात, द होल गुजरात क्राउड इज बूइंग हार्दिक बिकॉज़ गुजरात को हार्दिक ने धोखा छोड़ दे दिया। द होल मुंबई क्राउड इज आल्सो बूइंग हार्दिक। तो जाए कहां से? कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारे सिर्फ कैप्टन बनो। सिर्फ एक पॉइंट था जब जो हार्दिक के नाम पे चीयर्स हो रही थी जब वो कुत्ता ग्राउंड पे दैट वाज इट। उसके अलावा हार्दिक गॉट बूड आउट। लेकिन मजा आता है देखने में इस तरह के जो फन मैचेस होते हैं ना, जहाँ पे लाइक आप कहते हो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको जब समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो और ज्यादा मजा आ रहा होता है, अच्छा ये हो रहा है। सही बात है। लेकिन we're really excited for the New Zealand series first of all कि we have to see कि अब ये इस फिटनेस ट्रिप के बाद कितनी फिटनेस इंप्रूव होती है हमारे प्लेयर्स की, उसके बाद क्या कॉम्बिनेशंस टेस्ट होते हैं इस सीरीज में which is going to be followed by the World Cup. तो we're really excited. Any last words guys? इमाद वसीम
Pakistan cricket captain. 2 रिटायरमेंट जब वापस हुई हैं तो मुझे देखना है आगे क्या क्या हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान वैसे या कुछ भी हो सकता है। लाइक जैसे मैंने कहा सर्कस चल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो नवाज शरीफ भी है। हाँ You never know. You never know. Experience है उसके पास. कोच ना बना दे उसको, आजकल जितना ही कोच की बात चल रही है, कुछ कोच ना पता बना नहीं दे। ब्रो. फिटनेस ट्रेनर Bro, आपका। खान साहब से डील कर लें कि आप कोच करें पाकिस्तान को, हम आपको देना इम्यूनिटी देते हो सकता है. कुछ भी हो सकता है। अभी लेटेस्ट अलाइन हो गई है. आपको नहीं पता कि जना पाकिस्तान मिलिट्री कहाँ से खत्म होती है, पीसीबी कहाँ से शुरू होती है. इट्स द सेम थिंग ब्रो, इट्स द सेम थिंग. सही बात है. ट्रेनिंग करा रहे हैं भाई वो अपने लड़कों को। जंग पे लड़ने जा रहे हैं हम. वर्ल्ड कप नहीं के जीतने जा रहे हैं, जंग पे लड़ने जा रहे हैं. कैरेबियन के जो खूबसूरत बीचेस में हम जंग लड़ेंगे जा रहे हैं. आई रियली होप के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो, क्योंकि जितना हम बदनाम दुनिया में हो चुके हैं, थोड़ा तो रिडीम कर लें हम अपने आप को इस वर्ल्ड कप के लिए. क्या बदनाम हुए ब्रो, हेडलाइंस बन रही हैं, हेडलाइंस ब्रो. वो हमने पॉजिटिव हेडलाइंस. दुनिया जो है खुश हो रही है. मोहम्मद आमिर इज बैक. इंडियंस को देखो तो उनकी कंपनी इस वक्त जो है वो उरूज पे है. लोग इंडिया के अंदर जो है दहशत में मची हुई है. उनके कमेंटेटर्स परेशान हो गए. लोग इस वक्त पैसे इकट्ठे कर रहे हैं. वो तो रोहित शर्मा कह रहे हैं भाई तुम ओपनिंग नहीं करो. दो लेफ्ट आर्म है दोनों तरह से पिटना है. और आज तो लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी आउट हो गया रोहित शर्मा ब्रो. सही बात है. अभी तो विराट कोहली की बेचारी की सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं. अब तो वो कह विराट कोहली खुद कह रहा है इजी हो जाओ, इतना खुश नहीं हो जाता. कभी हो जाता है 2-3 दिन में. सो विराट कोहली भी डर गया ब्रो. अब क्या करें ब्रो. बट मैं ऑटोग्राफ लेने आऊंगा. सही बनती है. मैं बाबर से लूंगा ऑटोग्राफ, तुम विराट से लेना, और फिर हम पिक्चर लेके ना उस पर डालेंगे. हम अपने शाउट आउट करवा के चैनल पर डालेंगे. बट नहीं, आई थिंक मजा आएगा. इफ यू गाइज हैव एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, प्लीज लेट अस नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दीज 2 प्लेयर्स कमिंग बैक फ्रॉम रिटायरमेंट. आपके ओपिनियंस हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं. हम देखना चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं क्या पूरी आवाम वही सोचती है या किसी की कुछ डिफरेंट व्यूज हैं. So yeah, please let us know in the comments, and until next time, like and subscribe. Dil Dil Pakistan. Dil Dil Pakistan.